اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تمام محافظین کو میری جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی دوستو، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کی سیرت کے سیاہ کارنامے. تو جی دوستو، جس طرح کے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ واٹس ایپ پر یہ قادیانیوں کا ایک گروپ ہے فیضان ختم نبوت. تو اس میں قادیانی حضرات مسلمانوں کو بڑے شوق سے ایڈ تو کر دیتے ہیں، لیکن جب کوئی مسلمان بھائی مرزا قادیانی صاحب کی سیرت کے بارے میں سوال وغیرہ کرتا ہے تو اسے گروپ سے ریموو کر دیتے ہیں. تو جس طرح آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک قادیانی نے مجھے اس گروپ میں ایڈ کیا، تو تھوڑا آگے جا کے میں پھر گفتگو کا آغاز کرتا ہوں، مناظرے کا آغاز کرتا ہوں اور ان سے ایک سوال کہتا ہوں کہ جناب آپ نے مجھے گروپ میں تو ایڈ کر دیا، لیکن جب پھر ہم سوالات پوچھتے ہیں تو آپ گروپ سے ریموو کر دیتے ہیں. تو بالکل اس بار بھی انہوں نے اس طرح ہی کیا. جب میں نے مرزا غلام احمد قادیانی کے سیرت کے جو کارنامے تھے میں نے وہ ان قادیانی کو بتائے اور حوالہ کے ساتھ میں نے گفتگو کی، تو بجائے اس بات کے کہ مجھے دلیل کے ساتھ مجھے قائل کرتے، انہوں نے مجھے گروپ سے ریموو کر دیا. تو یہ مناظرہ سٹارٹ ہوتا ہے. آپ میری پہلی آڈیو سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب یہ پتہ نہیں کس نے گروپ میں ایڈ کر دیا ہے. ایڈ تو کر دیتے ہیں لیکن جو ہمارے سوالات ہوتے ہیں ان کے جواب دیتے نہیں ہیں. پھر جب ہم تھوڑی سختی سے سوالات پوچھے تو آپ گروپ سے نکال دیتے ہیں. یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا. یا ایڈ مت کیا کرو، جب ایڈ کر دیتے ہو تو جو سوال ہم کرتے ہیں ان سوالات کے جواب بھی دیا کرو. شکریہ. یار بھائی آپ کے سوالوں کے جواب تو دیتے ہیں، لیکن وہ الگ بات ہے کہ آپ کے سوال جو جوابات ہیں آپ کی مرضی کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. اور دوسرا، اگر آپ تمیز سے بات کریں تو آپ کو کوئی نہیں نکالنے کا، اور اگر آپ کو ایڈ کیا جاتا ہے، آپ سوچتے ہیں آپ کو آپ کے سوالوں کے جواب نہیں مل رہے تو آپ چھوڑ سکتے ہیں. اس پہ تو آپ کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے. ہم نے کون سے ادھر پہرے بٹھائے ہوئے ہیں آپ کے اوپر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں جناب اب تو ایڈ ہو گئے، اب انشاءاللہ اب ادھر ہی رہیں گے، اب نہیں کدھر جاتے. اب جتنی دیر تک آپ نے نا نکالا نا ہم ادھر سے نہیں جائیں گے. تو کون بندہ میرے سوالوں کو جواب دے گا؟ سوال تو میرے ایزی سے اور مختصر سے ہیں. آپ سوالوں کے جواب دیں گے. اگر آپ سوالوں کے جواب دیں گے تو آئیں تشریف لیں. شکریہ. جی اگر آپ اخلاق کے دائرے میں رہیں گے تو آپ کو کوئی نہیں نکالے گا. آپ کو کوئی نکالنے کے لیے تو نہیں نا ایڈ کیا. کچھ آپ ہمارے سوالوں کے جواب دیں، کچھ ہم آپ کے سوالوں کے جواب دیتے ہیں، تو ہم آپ کے سوالوں کے بالکل جواب دیں گے، اسی لیے ہم ادھر ہیں. لیکن آپ کو بھی ہمارے سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے جناب، یہ بھی یاد رکھیں، ٹھیک ہے نا. جی جناب، پہلے ہی آپ نے شروع کر دیا کہ ہم آپ سے سوال پوچھیں گے. یہ آپ نے پہلے شرط لگا دی ہے. جبکہ آپ کا بندہ کوئی بھی ہمارے گروپ میں آئے نا تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ یار جو مرضی آپ کے دل میں جو بھی سوال ہوتا ہے آپ سوال کریں. ہم یہ شرط نہیں لگاتے کہ پھر ہم بھی سوال کریں گے، ٹھیک ہے. آپ جناب پتہ نہیں آپ جواب ٹھیک طرح سے دے نہیں سکتے، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. شروع سے اسٹارٹ سے آپ یہ مسئلہ لگا دیتے ہیں. چلیں اب آپ بات شروع کریں گے میرے ساتھ. جناب محترم، آپ کا کون سا گروپ ہے؟ ہم تو جہاں بھی جاتے ہیں تو وہ تو بچھاڑ کر دیتے ہیں اپنے سوالوں کے. جی جو وہ شروع ہوتے ہیں جی کالو کالا اور وہ یہ لاش محمدی بیگم، مرزا صاحب کو مینسز آ گئے. آج تک انہوں نے ہمیں نہیں کہا بھائی کہ ہم سے بھی کوئی سوال پوچھو. کبھی بھی نہیں ایسا ہوا. مجھے ایسے گروپ میں ایڈ تو کر دو یار. اگر آپ کا کوئی ایسا ہے جہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ ہم سے سوال پوچھو، پلیز مجھے ایڈ کرو یار. میرا نمبر ہے. یہ تو بڑی اچھی بات ہے. میں تو آپ کے بڑے بڑے گروپوں میں گیا ہوں تو صرف گالیاں کھا کے میں چھوڑ کے آ گیا. اور وہ صرف غلیظ اور گندی گفتگو کرتے ہیں اور الزام تلاشی کرتے ہیں. ان بیچاروں کا تو پلے کچھ نہیں ہوتا. کون سا گروپ ہے جہاں پہ آپ جب ہم ادھر جاتے ہیں آپ کہتے ہیں جی کوئی بھی سوال پوچھ لو، ذرا مجھے ایڈ تو کرو اس گروپ میں. الرحمن الرحیم. جناب ہمارے بہت سارے گروپ ہیں. آؤ مہذب طریقے سے بات کریں، ایک آؤ مہذب طریقے سے بات کریں، دو اسلام، بہت سارے گروپس ہیں جس میں الحمدللہ بڑے اچھے طریقے کے ساتھ اور تمام آپ کے اعتراضات کے جواب دیے جاتے ہیں. اور یہ کالو کالا ہو گیا یا قاضی یار ہو گیا یا یہ لاش ہو گیا یا مرزا صاحب کو مینسز آئے، وہ 10 ماہ حاملہ رہے، وہ 10 ماہ حاملہ کون رہتا ہے. تو جناب محترم یہ تمام جو سی چیزیں یہ آپ کی باتوں میں لکھی ہیں. دوسری بات کہ دین میں
نئی چیز کو دین میں وقار کو آپ نے پیدا کیا ہے، ہم نے پیدا نہیں کیا، نئی چیز کو آپ نے اخذ کیا ہے، تو دلیل دینا بھی اور ہمارے سوالات کے جواب دینا بھی آپ کا بنتا ہے، کیونکہ 1300 سال سے جو امت کا اجماع چلا آ رہا تھا، اجماع سے ہٹ کے مرزا صاحب نے نئی باتیں اخذ کی ہیں، ٹھیک ہے، تو جو نئی باتیں اخذ کی ہیں اس کی دلیل ہم تو نہیں دیں گے، وہ تو حق آپ کا بنتا ہے نا کہ آپ دلیل دیں، آپ دلیل کے ساتھ ہم کو قائل کریں، آپ ہم کو سمجھائیں کہ جناب مرزا صاحب نے یہ جو کہا کہ مرزا صاحب کو حمل رہا، یا مرزا 10 ماہ حاملہ رہے، یا مرزا صاحب کو مینسز آتے رہے، پھر خود ہی وہ لڑکی بن گئے، پھر لڑکی سے عیسیٰ ابن مریم بن گئے، پھر یہ تو تمام باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، یہ تو میں آپ کو حوالے بھی سینڈ کر سکتا ہوں، یہ تو جناب یہ تو آپ ان باتوں کو ثابت کرنے نا، جواب آپ نے دینا، ہم نے جواب نہیں دینا۔ الرحمن الرحیم، اور جناب محترم یہ باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کہ مرزا قادیانی صاحب روزنامہ الفضل میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب کبھی کبھی زنا کرتے تھے، یہ باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کہ مرزا قادیانی صاحب تھیٹر بھی جاتے تھے، یہ باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، کہ مرزا صاحب امتحانات میں فیل ہو جایا کرتے تھے، یہ کتابیں یہ باتیں آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں، کہ مرزا قادیانی صاحب ایک ان پڑھ اور جاہل انسان تھے، یہ باتیں آپ کی کتابوں میں تمام کی تمام باتیں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ تمام باتیں کہ مرزا صاحب کے جو سے گھر میں نام محرم عورتیں ان کا مجمع لگا رہتا تھا، یہ تمام کی تمام باتیں جتنے بھی میں نے دعوے کی ہیں میں تمام باتوں کو دلیل کے ساتھ ثابت کروں گا، آپ کی کتابوں میں لکھی ہیں، آپ اپنی کتاب میں پڑھے تو صحیح، مرزا صاحب کی سیرت تو پڑھے، پہلے خود مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا، جو اس طرح کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ پھر وہی دعویٰ کر دیتا ہے، تو جناب محترم مرزا قادیانی صاحب قرآن و حدیث پر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، مرزا قادیانی صاحب تو اپنی ہی کتب کی روشنی میں جو سے دین اسلام سے خارج ثابت ہوتے ہیں اور جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ اچھا جناب مسلمان صاحب چلے یہیں پہ رکے، ذرا مجھے یہ حوالہ لگائے کون سی کتاب میں کہاں پہ لکھا، ذرا سکین لگایا کہ نعوذ باللہ من ذالک مرزا صاحب جو تھے وہ ایک جاہل انسان تھے، چلے آپ کا سچ کا معیار یہاں بھی پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کی کتنا علم ہے، ذرا لگایا حوالہ جناب، جو آپ نے کہا کہ آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب جو تھے نعوذ باللہ من ذالک وہ ایک جاہل انسان تھے، یہ لگائیں ذرا شاباش۔ الرحمن الرحیم، جناب محترم مثالے والے ہم کوئی جواب آپ سے طلب نہیں کرتے، پہلی بات کہ الحمدللہ میں ایک مسلمان ہوں، ٹھیک ہے، میرا یہ عقیدہ ہے کہ جو کسی بھی ضروریت دین کا انکار نہیں کرتا وہ مسلمان ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کو اپنی زندگی پر لاگو کرتا ہے تو کوئی بھی کافر نہیں ہے۔ دوسری بات جناب محترم، یہ بات آپ مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ میرے آنے سے قبل 73 فرقے بن چکے تھے، تو 73 تو کب کے مکمل ہو چکے ہیں، قادیانی تو 73 میں بھی شامل نہیں ہوتے، 73واں جو آخری جو ناجی فرقہ ہوگا، مرزا قادیانی صاحب لکھتے ہیں کہ میرے آنے سے قبل ہی وہ تو پورے ہو چکے ہیں، آپ کا تو ان میں شمار ہی نہیں ہوتا۔ اور دوسری بات جناب محترم جواب کیسے ملے گا، مرزا قادیانی صاحب نے جو باتیں لکھی ہیں ان کا جواب مجھے کیسے ملے گا، وہ باتیں ہیں ہی قرآن و حدیث کے خلاف، ٹھیک ہے۔ پہلے مرزا قادیانی صاحب جی جناب مہدی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ پوری زندگی کوئی بھی قادیانی ان کو مہدی نہیں ثابت کر سکتا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام مہدی کی جو نشانیاں بیان فرمائی ہیں وہ کسی صورت میں بھی مرزا قادیانی پر صادق نہیں آ سکتی۔ پھر مرزا قادیانی نے ایک قدم آگے بڑھایا، جناب مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور یہ کہا اس نے، میں حوالہ سینڈ کر سکتا ہوں، مرزا قادیانی صاحب کہتے ہیں کہ میں صرف مسیح ہوں، جو مجھ کو مسیح موعود کہے وہ سراسر مفتری ہے، وہ کذاب ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن تھوڑی دیر بعد جناب محترم مرزا قادیانی صاحب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اپنے ہی قول کے مطابق مرزا قادیانی صاحب جھوٹے ثابت ہوئے، ٹھیک ہے۔ جب مسیح موعود ہوتے ہیں جناب تو ہم احمد البشریٰ لکھتے ہیں، اس میں بالکل اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے اور کہے کہ میں نبی ہوں، دین اسلام سے خارج ہے، یہ مرزا قادیانی صاحب یہ لکھتے ہیں ہم احمد البشریٰ میں کہ جس میں مسیح موعود کا اپنا صحیح ڈنکا میں بچاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر 10 یا 11 سال کے بعد مرزا صاحب قادیانی صاحب خود مقام نبوت پر فائز ہو جاتے ہیں، تو مرزا قادیانی صاحب تو جناب محترم اپنے ہی اقوال کے مطابق ہی دین اسلام سے خارج ثابت ہوتے ہیں اور جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ ہم آپ کو قرآن و حدیث سے کیا دلیل دیں، آپ ذرا اس بات پر آئے نا، مجھے آپ اجراء نبوت کو ثابت کریں۔ قرآن الرحمن الرحیم، جی جناب اگر میں یہ بات ثابت کر دوں کہ مرزا صاحب کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا صاحب ان پڑھ اور گنوار انسان تھے، تو کیا آپ تسلیم کر لیں گے مرزا صاحب کو کہ وہ ان پڑھ جاہل اور گنوار انسان تھے؟
जनाब मोहतरम, आपने जो ऊपर बात की है ना, आपने कहा जी कि मिर्जा साहब जो थे, मिर्जा साहब की किताबों में लिखा हुआ कि वो एक जाहिल इंसान है। मिर्जा साहब की किताब है, इसका मतलब है कि मिर्जा साहब ने अपने मतलब खुद कहा कि मैं एक जाहिल इंसान हूँ। ठीक है, ये कौन सी किताब है? हवाला आप लगाए तो सही ना, शर्तें तो ना लगाए। ठीक है, और आपने अपना फिरका नहीं बताया, आपने कहा जी मैं मुसलमान हूँ। तो मुसलमान जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक जो है उम्मत जो है 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। तो आपको एक किसी न किसी फिरके में तो होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप मुसलमान हैं ही नहीं, क्योंकि ये तो आका का हुक्म है कि मेरी उम्मत जो है वो 73 फिरकों में तकसीम हो जाएगी। अगर आप अपने फिरका बताते हुए शर्माते हैं, इतनी तो आप में जरूरत नहीं है कि फिरका अपना बताए, कहते मैं मुसलमान हूँ। तो आपने क्या हमसे बात करनी है? पहले फिरका बताओ, जरा गोडे से पार पाओ जनाब। जनाब अब हवाला सेंड करूं आपकी कुतब से, आपकी मौत पर कुतब है, आप उसका इनकार नहीं कर सकते। अगर आप उसका इनकार करें तो जनाब वो जो साहिब तसनीफ है जिसने उस किताब को लिखा है, आपको उस पर भी फतवा लगाना पड़ेगा कि आप इस बात को तस्लीम करते हैं, या आपको वो हवाला तस्लीम करना पड़ेगा। अगर आप उस हवाले को तस्लीम नहीं करते तो फिर साहिब तसनीफ पर आपको फतवा लगाना पड़ेगा। अहमद साहब, अभी आप ना जूते खा के ना यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने आपको पहले कहा था ना कि आपको कोई नहीं निकालेगा अगर आप तमीज से बात करेंगे। मिर्जा साहब, तो अगर आपने बात करनी है ना तो इंसान के बच्चों की तरह करो। लो जनाब, ये सुन लो जी, अब हम मिर्जा भी नहीं कह सकते। हमको इनके ग्रुप में आने के लिए जो हमारे लिए शर्त है, ये हम पर फर्ज है, ये लाजिम है कि हम अकेला मिर्जा नहीं कहेंगे बल्कि मिर्जा साहब कहेंगे, नहीं तो ये हमको जूतियां मारेगी। ये इनका इखलाक देख लें, ये लोगों को जाहिर तौर पर इखलाकियात का दर्स देते हैं, लेकिन इनका अपना इखलाक कितना स्याह है आप अंदाजा भी नहीं कर सकते। इसकी ऑडियो आप आगे सुने। अगर आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाते और कहते हो कि वो आपके नबी हैं, तो उसवा हसना को फॉलो करना। हमें तो सबसे पहले समझ ही नहीं आती कि आप मुसलमान हो भी कि नहीं। आप कौन से नबी के दीवानगी की बात करते हो, उनके इश्क की बात करते हो, उनकी एक भी बात तो मानते नहीं हो। बदतमीजी और गलाजत तो आपके मुंह से हर वक्त टपकती रहती है, बात करने की आपको तमीज नहीं है? तो मिर्जा साहिब, नहीं तो हम आपको यहाँ से चित्तर मार के बाहर निकाल देंगे। ठीक है जनाब, आप डिजर्व नहीं करते कि कोई सवाल आपके पास है नहीं। हमें तो पता आपकी औकात का। अगर आप में इतनी हिम्मत होती तो आपके मौलवी हमें काफिर करार न देते और हमारी तबलीग बंद न करते। वो कहते हैं ना कि ना खंजर उठेगा न तलवार इनसे ये बाजू हम। जनाब मोहतरम, पहली बात, अगर काफिर को काफिर नहीं कहेंगे तो क्या होगा? पता नहीं आपको 1974 वाला दुख पता नहीं क्यों लेके बैठ गया, मुझे तो ये समझ नहीं आती। और दूसरी बात जनाब मोहतरम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र है कि अब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्वाए हसना उसको हम फॉलो करते हैं। जब फतह मक्का हुआ तो रास्ते में जब मुसलमानों का सहाबा इकराम का लश्कर जा रहा था तो रास्ते में एक कुत्ती थी, उसने बच्चे दिए हुए थे। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की ड्यूटी लगा दी कि आप इनका ध्यान रखें, कोई जो सा है इनको तकलीफ ना पहुंचाए। ठीक है। और दूसरी जानिब जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम जो सा है मक्का को फतह कर दिया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी आपके दुश्मन थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम को माफ कर दिया, लेकिन जो इब्ने खतल था उसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे के पर्दों में लिपटे हुए को कत्ल करवाया। तो इससे पता चलता है कि दीन इस्लाम में एक जो सा कुत्ता है उसको तो उसके हकूक है, लेकिन जो दीन इस्लाम का मुनकिर है, जो फितना और फसाद करने वाला है, उसके लिए कोई भी हुकूक नहीं है। उसकी सजा ये है कि अगरचे वो काबे के पर्दों में लिपटा हो उसको वहां पर कत्ल कर दिया जाए। ये हमारे उसवाए हसन है। और जनाब ये मैंने जो बातें मैं कर रहा हूँ मैं अपनी जानिब से नहीं कर रहा, आप कोई हवाला तो मुझसे तलब करें जनाब, मैं हवाला देता हूँ आपको। तो मेरे भाई ये कहानी हम बड़ी सुन चुके हैं, अपना फिरका बताओ और वो हवाला लगाओ ताकि बात आगे हो सके। ठीक है ना? हमें नजर आ रहा है कि तेरे पल्ले कुछ नहीं है। नंबर 1 हवाला लगाओ और अपना फिरका बताओ। चलो आगे बातें, ये कुतियों की बातें और ये जो कहानी है ना, ये अपना अरबिक नाइट्स की, ये जो तुमने अपने बड़ों से सीखी है, बीबी फातिमा की कहानी और फलाने मिलाद शरीफ, ये हमें मत सुनाओ। बात करनी है कुरान और हदीस से करो, सॉलिड बात करो। तुमने क्या है तो नाउजुबिल्लाह जो तुमने अभी इल्जाम लगाया, अगर हिम्मत है तो जरा लगाओ अपना उसका हवाला और जरा अपना फिरका बताएं जनाब। जी दोस्तों, जिस तरह कि आपने सुना है
میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ज़िंदगी کا ایک پہلو رکھا ہے اس کے سامنے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جانوروں کے ساتھ جو حسن اخلاق تھا میں نے وہ اس کے سامنے رکھا، اور آگے سے یہ قادیانی گستاخی کرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم آگے سے اپنے ڈرامے بازیاں اپنے کہانیاں نہ سناؤ، اور نعوذ باللہ معاذ اللہ کہتا ہے کہ تم بی بی فاطمہ کے قصے سناتے ہو، کہانیاں سناتے ہو، میلاد شریف سناتے ہو۔ تو جی جناب یہ مناظرہ جاری ہے، آپ میری اگلی آڈیو سنیے۔ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم یہ فضول کی باتیں چھوڑ کے اگر آپ کسی حوالے پر کسی ٹاپک پر ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے تو بہتر ہوگا، ٹھیک ہے۔ میں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ جناب مرزا صاحب کی جو سیرت پر لکھی گئی کتب ہیں اور جو معتبر ہیں آپ کے نزدیک، ان میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب ایک گنوار شخص تھے، وہ امتحانات میں فیل ہو جایا کرتے تھے، اور مرزا قادیانی صاحب جب انہوں نے مسیح ہونے کا دعویٰ کیا تو اس نے کہا جو مجھے مسیح موعود کہے وہ سراسر مفتری ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد مرزا قادیانی صاحب مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں، یعنی اپنے ہی قول کے مطابق مرزا قادیانی صاحب جو جھوٹے ثابت ہوتے ہیں۔ پھر جب مسیح موعود کی سیٹ پر فٹ ہوتے ہیں تو جناب محترم پھر خوب تردید کرتے ہیں محمد البشرا میں کہ جو بھی کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے دین اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، دین اسلام سے وہ خارج ہے۔ لیکن مرزا قادیانی صاحب 10 سال بعد پھر خود نبوت کا دعویٰ کر دیتے ہیں، تو مرزا قادیانی صاحب خود ہی اپنے فتوے کے مطابق کافر ثابت ہوتے ہیں، دین اسلام سے خارج ثابت ہوتے ہیں۔ جناب محترم آپ مجھے حکم تو کریں جناب، میں حوالے سینڈ کرتا ہوں، میں الزام نہیں لگا رہا، میں آپ کی کتب پڑھ کے آپ کو سنا رہا ہوں۔ ہم آپ کی کتب آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں جناب محترم، آپ پتہ نہیں پریشان کیوں ہو جاتے ہیں اور آپ لطر چتر کی بات کریں۔ میں اتنی تمیز کے ساتھ اپنے آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور عجیب بات ہے یار، آپ لطروں چتروں کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ۔ جی دوستو، جس طرح کہ آپ نے سن لیا، یہ میں نے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں اس پک کو، سکین کو، ذکر حبیب کا صفحہ نمبر 2، اس کا میں نے حوالہ سینڈ کیا کہ جس میں قادیانیوں کے مفتی اعظم محمد صادق صاحب صفحہ نمبر 2 پر لکھتے ہیں کہ مرزا قادیانی صاحب کی شکل گنواروں جیسی تھی۔ اور ویڈیو کے اینڈ میں انشاءاللہ میں تمام جو سے حوالے میں تو جو سی تمام باتیں کر رہا ہوں، ویڈیو کے آخر میں تمام میں حوالے زوم کر کے آپ کو دکھاؤں گا۔ اب مناظرہ جاری ہے، آپ میری اگلی آڈیو سنیے۔ الرحمن الرحیم۔ جی جناب، ذکر حبیب مصنف اس کا مفتی محمد صادق صاحب، جو کہ وہ بھی کبھی کبھی ٹھٹر جایا کرتے تھے، اس کے صفحہ نمبر 2 پر لکھتا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب تو ایک گنوار شخص تھا۔ آپ پڑھ سکتے ہیں، میں نے ہائی لائٹ کر دیا ہے، الحمدللہ میں نے حوالے سے دلیل کے ثابت کر دیا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب ایک گنوار شخص تھا۔ یہ پڑھ لیں، ذکر حبیب صفحہ نمبر 2، مصنفہ مفتی محمد صادق۔ پھر دوبارہ یار تم لمبی تقریر کر رہے ہو۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ مرزا صاحب نے کہاں پہ لکھا ہے نعوذ باللہ کہ میں جاہل ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور دوسرا اپنا فرقہ بتاؤ، یا فرقہ تو بتا دو، اور کہاں مدرسے سے پڑھ کے آ گئے مولویوں کی گود میں بیٹھ کے میرے بھائی بات تو کرنی پہلے سیکھ لو، کو بات کرو۔ ابھی تک تم نے ایک بھی کام کی بات نہیں کی، ایک بھی مسلمانوں والی بات نہیں تم نے کی، کیونکہ تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، ٹھیک ہے؟ رٹی رٹائی باتیں مولوی کی پرچیاں سنا رہے ہو، تو تمہیں میں گزارش کر رہا ہوں اپنا فرقہ تو بتاؤ، تم مسلمان ہو، ثابت تو کرو کہ تم مسلمان ہو، چلو ثابت کرو کہ تم مسلمان ہو، کیسے مسلمان ہو؟ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو میرے سامنے، شاباش۔ کیا تم میں مسلمانوں والی کوالٹی ہے؟ کیسے کیوں اپنے آپ کو تم مسلمان کہتے ہو؟ ثابت کرو میرے سامنے۔ جی دوستو، جس طرح کہ میں پہلے مسلمان ہونے کی میں تعریف بیان کر چکا ہوں اور میں بالکل واضح کر چکا ہوں کہ میں اللہ تعالیٰ کو ایک مانتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا آخری نبی مانتا ہوں، اور تمام ضروریات دین اس کا اقرار کرتا ہوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اس کا اقرار کرتا ہوں، اور میں نے اوپر حوالہ بھی سینڈ کر دیا ہے، یہ دوبارہ آپ کو میں دکھا دیتا ہوں، یہ میں نے ذکر حبیب کا حوالہ بھی سینڈ کر دیا ہے۔ لیکن قادیانی مر تو سکتا ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، قیامت کبریٰ تو قائم ہو سکتی ہے، لیکن مرزائی قادیانی کبھی بھی مرزا قادیانی کی جو سیرت ہے اور اس نے جو سیاہ کارنامے سر انجام دیے کبھی بھی اس کا دفاع نہیں کر سکتا۔ آپ میری اگلی آڈیو سنیے۔ الرحمن الرحیم۔ جناب میں کیوں ثابت کروں؟ الحمدللہ ہم تو 1300 سال سے چلے آ رہے ہیں، ہمارا تعلق تو 1300 سال سے جو لوگ چلے آ رہے ہیں ان سے ہیں، نئی بات کو آپ نے ایجاد کیا ہے، آپ مجھے جواب دیں۔ جناب محترم میں دعوی کر رہا ہوں، مرزا قادیانی نے مہدی کا دعویٰ کیا، آپ اس کو مہدی ثابت کریں۔ مرزا قادیانی صاحب نے مسیح کا دعویٰ کیا اور بعد میں کہا کہ جو مسیح موعود کہے مجھے وہ مفتری ہے، وہ کذاب ہے۔ پھر مرزا قادیانی صاحب نے نبوت کا دعویٰ کیا اور پہلے کہتے ہیں کہ جو مجھے نبی کہے وہ دین اسلام سے خارج ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ میں دعوے کر رہا ہوں جناب، آپ کسی ایک بات پر دلیل تو مجھ سے طلب کریں۔ الرحمن الرحیم۔ جناب یہ ذکر حبیب کا اوپر میں نے سینہ آپ کو لگا دیا، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مرزا قادیانی صاحب ایک گنوار شخص تھے کہ جن پر الہام ہوتے تھے، اور یہ ذکر حبیب یہ آپ کی معتبر کتاب ہے، آپ اس کا انکار نہیں کر سکتے۔
अगर आप इसका इनकार करेंगे तो जिक्र हबीब का जो मुसन्निफ है उस पर भी आपको फतवा लगाना पड़ेगा। तेरे पे तरस आता है, तूने हवाला लगाया है। ये एक रेफरेंस दिया गया है कि मुफ्ती सादिक साहब ने नाउज़ुबिल्लाह हज़रत मिर्ज़ा साहब के मुतल्लक है। मैं कहता हूँ मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ, कुरान करीम में लिखा होगा नमाज मत पढ़ो, नमाज के नजदीक मत जाओ। मैं तुम्हें कुरान से निकाल देता हूँ, बताओ अभी निकाल दूं, हवाला दूं? चलो शाबाश, बात करो। लो जी जनाब, ये सुन लो दोस्तों, सुन लो, कादियानियों का नया शोशा है, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह। कुरान पर बहुतान बांधते हुए कादियानी मिर्ज़ाई कहता है कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। आप इनकी अक्लों का लेवल चेक कर लें कि अल्लाह ताला ने इनकी अक्लों पर कितने पर्दे डाल दिए हैं कि इनको पता ही नहीं चलता कि हम जो बोल रहे हैं, अपनी ज़ुबान से जो अदा कर रहे हैं, उसका ताल्लुक दीन से है या नहीं, क्या उसका सबूत मिलता है, या किस लेवल की, किस स्टेज की वो गुस्ताखी है। मेरी अगली ऑडियो सुनिए आप। जनाब, ये मुफ्ती सादिक साहब एक दूसरे बंदे को कह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी साहब तो एक गंवार शख्स थे। ये आप जनाब आप इधर उधर मत जाएं, ठीक है ना। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर बिल्कुल वाज़ेह तौर पर लिखा है कि कादियान में एक मिर्जा साहब हैं कि जिनको इल्हामात होते हैं, उनकी शक्ल बिल्कुल सादा गंवारों की तरह है। वो मुफ्ती सादिक साहब है, जिक्र हबीब के मुसन्निफ, और आपके मुफ्ती आजम साहब हैं जो कि मिर्जा कादियानी के साथ साथ रहते थे, मिर्जा कादियानी साहब के सहाबी भी थे। इस बात का आप जवाब दें, इधर उधर मत जाए। मैंने आपको इधर उधर नहीं जाने देना, आप पता नहीं किस भूल में लगे फिरते हैं। चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मौत फिर तुम्हारे बुजुर्गों की किताब का रेफरेंस लगा देता हूँ, जिसमें लिखा हुआ है कि अपनी माँ के साथ ज़ना करने की इजाजत है, ठीक है। बताओ, और तुम अपने आप को मुसलमान कहते हो, क्या इजाजत है? अभी लगा देता हूँ, चल बता। जी दोस्तों, अब ये आप देख सकते हैं कि कादियानी अब जब बिल्कुल फंस गया है, अब उसने टॉपिक को चेंज करने की नाकाम कोशिश करते हुए हम पर इल्ज़ाम लगाया कि नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कि तुम्हारे बुजुर्ग लिखते हैं या तुम्हारी मौत पर कुतब में लिखा है कि नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह कि माँ के साथ ज़िना करना जायज़ है। लेकिन मैंने इसको टॉपिक से हटने नहीं दिया, मैंने फिर वही अपना दोबारा सवाल दोहराया। आप दोबारा सुन सकते हैं। अब तरस तो मुझे आपकी हालत पर आ रहा है कि मैं इतने एतराज़त कर रहा हूँ, आप किसी का जवाब नहीं मुझे दे रहे। आप में इतनी हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप मेरे किसी एतराज का जवाब दे सकें। जनाब, मैं आपके मिर्जा साहब को झूठा साबित कर रहा हूँ, मिर्जा साहब की किताबों की ही रोशनी में। तो जनाब, पहले मैंने सवाल कायम किए थे, उनका तो जवाब दो मुझे। आप बजाय इस बात के कि आप मेरे सवालों का जवाब दो, आपने मुझ पर ही अटैक शुरू कर दिया, सवाल शुरू कर दिए। तो जनाब, पहले जो मैंने आपसे सवालात किए हैं उनका जवाब दो, बाद में मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा। मैं नहीं कहीं जाता, मैं इधर ही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मेरी तो ड्यूटी लगी हुई है, मैं इधर ही हूँ, मैं नहीं जाता। पहले मैंने जो सवालात किए हैं, भाग्य मत इधर उधर की मत मारे, ठीक है ना। जो मैंने पहले सवालात किए हैं, आप पहले या तो उसको नबी साबित करें, फिर जब नबी साबित करेंगे तो फिर मैं मिर्जा कादियानी साहब की आपको कुतब पढ़ के सुनाऊंगा कि मिर्जा कादियानी साहब क्या कहते हैं। उसको मेहदी साबित करें, उसको मसीह साबित करें, मसीह मौत साबित करें। मिर्जा कादियानी साहब तो अपनी ही कुतब की रोशनी में झूठे साबित हो रहे हैं, और आप इधर उधर भाग रहे हैं, पता नहीं कैसे मानने वाले हैं, कैसे उमती हैं आप मिर्जा कादियानी साहब के। देखो भाई, ये बताओ कि जो ऊपर जो पूरा पैराग्राफ है ना, पहला जिक्र, ये पूरा पढ़ो ऑडियो में, शाबाश। और इस हवाले के आखिर तक जाओ, ये कोई 10 लाइनें हैं, जरा पढ़ो, शाबाश। और अपना फिरका तो बता दो, और मुसलमान भाई फिरका तो बता दो। अगर तुम फिरका नहीं बताते, किसी फिरके में नहीं, तो मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रहा, तो मुसलमान हो ही नहीं। मुझे भी कोई जरूरत नहीं है कि तुम्हें मैं किसी चीज को साबित करूं, ठीक है ना। मैंने कोई तेरा कर्जा नहीं देना कि तेरे से बेवकूफ के साथ ऐसी बातें करता जाऊं। पता नहीं तेरा दिमाग भी ठीक है, मुझे क्या पता कब तुम पागलखाने से छूट के आए हो। बहरहाल ये हवाला पढ़ो। जनाब, ये जो लिखा हुआ है ना, मिर्जा कादियानी साहब एक गंवार शख्स थे, इसका 10 लाइनों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। चले ताल्लुक आप इसका कायम भी कर दें तो इस बात की नफी कहीं से भी साबित नहीं हो रही, ठीक है ना। जनाब मोहतरम, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह साबित कर दिया है, आपकी किताबों की रोशनी से साबित कर दिया है। इन 10 लाइनों से आप मुझे साबित कर दें कि इस बात की नफी हो कि मिर्जा कादियानी साहब एक गंवार शख्स नहीं थे, ठीक है जनाब। अब जवाब दे मुझे, आप फिरकों की तरफ भागे क्यों आ रहे हैं? मैं तो एक आम सा बंदा हूँ, मुसलमान हूँ, मैं बस अपने आप को मुसलमान समझता हूँ, और हर उस बंदे को मैं मुसलमान समझता हूँ जो कि अल्लाह ताला के हकाम की पैरवी करता है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, तमाम ज़रूरियातें जो कि दीन है उसका
उसका इकरार करता है, अमल बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर को अपनी जिंदगी पर लागू करता है। आप मेरे सवालों के जवाब दें जनाब मोहतरम, इधर उधर मत भागें, मैं नहीं जाने दूंगा आपको। चले जनाब, ठीक है, बिल्कुल ये मिर्जा साहब की किताब नहीं है, लेकिन क्या ये आपके नजदीक मोतबर किताब नहीं है? अगर आपके नजदीक मोतबर किताब नहीं है तो मुफ्ती सादिक पर आप फतवा लगाए हैं कि ये गुस्ताख जाहिल इंसान था, ठीक है। और जनाब ऊपर वाली 10 जो थी 10 या नीचे वाले 10 लाइनों से इस बात की नफी नहीं हो रही, और मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि आपकी किताबें पढ़ पढ़ के मैं आपको सुनाऊं। इस बात की नफी कहीं से भी नहीं हो रही कि मिर्जा कादियानी साहब की शक्ल एक गंवार शख्स की तरह थी। अगर नफी साबित हो रही है तो मुझको साबित कर इस बात को। चल यार साबित हो गया तेरी नजर में, चल भंगड़े पा, चल शाबा मिलाद खार दे, लब्बैक 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 शुरू हो जा। ओए अपना फिरका दे दस, ओए ओ केड़े पिंडों उठ के आ गया तू, ओ मौलवी, और पहले अपने आप अपना फिरका तो बता, फिर तेरे साथ बात करते हैं। साबित हो गया, तुमने 130 साल से ये तुम्हारे बड़े भी यही कुछ करते मर गए हैं। और पहले अपने आप को साबित तो करो, तुम तेरा फिरका क्या है, तुम मुसलमान भी है कि नहीं, कि पता नहीं यहूदी है तुम, अब तो ये भी नहीं पता कि तुमको कोई रॉ का एजेंट ही है। तुम्हारा बड़ा बुढ़ा तो अंदर कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, तुम्हारी क्या औकात है, ठीक है। तो वो जो मैंने तुम्हें कहा कि मैं कुरान से भी साबित कर देता हूँ, कुरान कहते हैं कि नमाज जो है ना, नमाज के करीब मत जाओ, करो साबित, लगाओ वाला, बता। जी दोस्तों, आप फिर सुन सकते हैं, पहले भी इसने कुरान पाक पर बहुतान बांधा कि नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि आप नमाज के करीब मत जाओ। अब अपनी जहालत को फिर उसको वाज़े करते हुए और जहालत का इकरार करते हुए फिर दोबारा कहता है कि नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह, अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है कि नमाज के करीब मत जाओ। अब ये कादियानी हजरात अपने मिर्जे को बचाने के लिए किस हद तक गिर सकते हैं, इस बात का आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह अपने मिर्जे कादियानी को बचाने के लिए ये कादियानी हजरात कुरान पर बहुतान बांधने से भी बाज नहीं आते। आप इसकी अगली ऑडियो सुनिए। अच्छा, तो तुम इस बात की नफी कर सकते हो कि कुरान में लिखा है नमाज के नजदीक मत जाओ, है? बताओ मुझे, लिखा हुआ है कि नहीं? मैं साबित करता हूँ। तो फिर नमाज क्यों पढ़ते हो? क्यों नमाज पढ़ते हो? तुम्हें नमाज नहीं पढ़नी चाहिए क्योंकि कुरान में लिखा हो कि नमाज के करीब मत जाओ। अगर कहते हो तो मैं भी तुम्हें हवाला करके हाईलाइट करके तुम्हें भेज देता हूँ, बात करो। लो जनाब, तमाम कादियानी हजरात, उनके लिए नया ऐलान, और उनके पेटी भाई ने एक नया शोशा निकाल दिया है कि आज के बाद कोई भी नमाज नहीं पढ़ेगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह कुरान पाक में इरशाद फरमाया है कि नमाज के करीब मत जाओ, लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन। ये मेरी अगली ऑडियो सुनिए। जनाब, मैं पिछली ऑडियो में मैं साबित कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह ताला को एक मानता हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का रसूल मानता हूँ, आखिरी रसूल मानता हूँ, और तमाम ज़रूरियातें जो सी दीन है उसका इनकार नहीं करता बल्कि उसका इकरार करता हूँ। और जो उसका इनकार करता है मैं उसको मुसलमान तस्लीम नहीं करता, और जो उसका इकरार करता है मैं उसको मुसलमान मानता हूँ। अब ये वाज़ेह हो गया जनाब। आप साबित करें जनाब, जो मिर्जा कादियानी साहब को मुफ्ती सादिक साहब लिख रहे हैं कि वो एक गंवार शख्स था, ठीक है, और मुफ्ती सादिक साहब आपके मुफ्ती आजम है, और मिर्जा कादियानी साहब की जो है ये सहाबी हैं, ठीक है। तो इस बात का मुझे जवाब नहीं, या तो आप इस बात को तस्लीम करें कि हाँ बिल्कुल जनाब मिर्जा कादियानी साहब की शक्ल एक गंवार शख्सों की तरह थी, क्या मुफ्ती सादिक साहब पर आप फतवा लगाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जनाब, जिक्र हबीब का मैंने जो हवाला किया है, आप इसका सियाको सबाक मिला के देख लें। आप ऊपर वाली 10 लाइनें, नीचे वाली 10 लाइनें आप उसको मिला के देख लें, ठीक है। आपको पता चल जाएगा कि ये जो बात कह दी है मुफ्ती मोहम्मद सादिक साहब ने, इसका इनकार कहीं से भी साबित नहीं हो रहा, ठीक है। और नमाज के करीब मत जाओ, नमाज के करीब मत जाओ, ये हमारा मौजू नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपसे सवाल पूछा है ना, मुझे पता है कि आपने कौन सी दलील देनी है, वो भी आपकी जहालत पर कायम है, ठीक है ना। तो मैं जो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि क्या इस बात की कि मिर्जा कादियानी साहब एक जाहिल शख्स थे, मिर्जा कादियानी साहब एक गंवार शख्स थे, अगर ऊपर वाली 10 लाइनों से या नीचे वाली 10 लाइनों से अगर इसकी नफी साबित हो रही है तो आप इसको साबित करें। देखो मेरे भाई, आप अपना फिरका नहीं बता रहे, आपका किसी फिरके से तल्लुक नहीं है, इसलिए मैंने साबित कर दिया कि आप काफिर हैं, ठीक है ना। और उसके अलावा आपको मैंने कहा है कि वो जो मुफ्ती सादिक साहब ने नहीं कहा, उन्होंने रेफरेंस एक दिया कि मुझे कोई अहमदीन साहब थे, उन्होंने इस तरह की बातें बताई थी अहमदी होने से पहले, लेकिन आपकी बात में समझ नहीं आता, इसलिए मैं ये भी साबित कर रहा हूँ कि आप पागल हैं, आप पागल खान से अभी छूट के आए हैं, ठीक है।
तो एक तो आप मुसलमान नहीं है, पक्की बात है, क्योंकि आप अपना फिरका नहीं बताते, मैंने साबित कर दिया, और दूसरा ये भी मैंने साबित कर दिया कि आप पागल हैं। रहमान जनाब मोहतरम और गल सुनो मेरी, क्यों नसी जाते हो? गल यह आ कि मुफ्ती मोहम्मद सादक साहब पिछलियां 2 दिन लेना पढ़ लो, वो लिखते ने कि मुफ्ती मोहम्मद सादक साहब ने खबर किन्ना ने दी? हकीम अहमद साहब नो। हकीम अहमद साहब जो कि बड़े नेक शख्स थे, उन्होंने साथ कैद लगाई है। उन्होंने ये नहीं लिखा कि बड़ा उनके दिल में बुग़्ज़ था या वो जाहिल इंसान थे, ये फिर उन्होंने कहा है कि हकीम साहब तो बड़े नेक शख्स थे, और वो नेक शख्स मुफ्ती मोहम्मद सादक साहब को कह रहे हैं कि एक बंदे पर कादियान में एक बंदे पर इल्हाम होता है जो कि उसकी शक्ल गंवारों की तरह है। तो ये नेक जो शख्स थे, जो मिर्जा कादियानी साहब के मानने वाले थे, मिर्जा साहब के हमायती थे, नेक शख्स, वो नेक शख्स ये कह रहे हैं कि मिर्जा कादियानी साहब की शक्ल तो गंवारों जैसी थी। जनाब आप भी तो 2-3 लाइनें पीछे से पढ़ लेना, पता नहीं आप पढ़ते क्यों नहीं अपनी किताबों को ठीक तरह से। रहमान अजीब बंदा है यार तू। मैं जब कह रहा हूँ कि मैं अल्लाह ताला की वहदानियत को तस्लीम करता हूँ, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत को तस्लीम करता हूँ, तमाम ज़रूरियात दीन का मैं इकरार करता हूँ, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकिर को अपनी जिंदगी पर लागू करता हूँ। अजीब बंदा यार तू, मुझे काफिर कह रहा है, तू मुझे दीन इस्लाम से खारिज कर रहा है। रहमान रहीम। और जनाब मिर्जा कादियानी साहब एक गंवार शख्स था, एक जाहिल शख्स था। इसकी तईद एक और हवाले से होती है कि मिर्जा कादियानी साहब जो से इम्तिहान आते उसमें फेल हो जाया करते थे, ठीक है। और इस बात का सबूत आगे एक और हवाले से मिल रहा है कि मिर्जा कादियानी साहब ने बड़ी तैयारी करके एक पेपर दिया, उस पेपर में फेल हो गए। लो जी ये नबी है, ये नबी दुनिया के इम्तिहान है जो फेल होता पाया ते आखिरत के अंदर जाके की बनेगा? यार मुझे ये बताओ कि तुम किताब अगर पढ़ो ना रगीला रसूल जो राजपाल ने लिखी है, तो वो भी इसी किस्म के इल्जामात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मतलब लगाते हैं। क्या काफिर जो थे वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाहिल नहीं कहते थे? ये बताओ, हैं? बताओ, कहते थे कि नहीं? तो तुम बिल्कुल उनकी कुफार की सुन्नत फॉलो कर रहे हो कि नहीं? और तुम कहते हो कि मैं मुसलमान हूं, अपना फिरका भी नहीं बताते, तो इससे जाहिर हुआ कि तुम काफिर हो, क्योंकि तुम्हारी आते राजपाल से और अबू जाहिल से मिलती हैं, क्योंकि वो भी यही इल्जामात हमारे आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे लगाते थे। तो ये तो बड़ी आम सी बातें हैं कि जनाब वो भी कहते थे कि ये अपना अबू जाहिल का कहता मैं इतना पढ़ा लिखा बंदा हूँ, मैं अगर नबी बनना होता तो खुदा मुझे बनाता, इस जाहिल बकरियां चराने वाले को बना दिया, ठीक है ना। तो ये तो आम सी बातें हैं जो तुम कर रहे हो। तो तुम क्योंकि तुम काफिर हो, मक्के के काफिर, उनसे तुम्हारी मुमासलत है। तो कोई रहमान जनाब पहले आप एक बात तो मुझे बताएं कि आप मिर्जा कादियानी साहब को बचाने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहारा क्यों लेते हैं? ठीक है, जाहिल जो से लोग थे, जाहिल लोग वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इल्जाम लगाते थे, लेकिन इस बात का सबूत ना तो किसी कुरान में मिलता है हमें और ना ही किसी हदीस मुबारका में मिलता है। जबकि अल्लाह ताला कुरान पाक में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने के बारे में इरशाद फरमाया है अल्लामल कुरान आई मा काना व मा यकून, यानी कुरान पाक में अल्लाह ताला ने कुरान पाक का इल्म देके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर एक शय का इल्म अता कर दिया, ठीक है। यानी कि इस बात की दलील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौल से नहीं होती थी, या किसी सहाबी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर ये बात नहीं लिखी कि नाउज़ुबिल्लाह माअज़ल्लाह कि वो अस्तगफिरुल्लाह के उनको इल्म नहीं था, कि जिस तरह काफिर अबू जहल कहता था। जबकि मिर्जा कादियानी साहब इसके मानने वाले, इसके जो अजीम सहाबी हैं, वो लिख रहे हैं कि मिर्जा कादियानी साहब एक गंवार शख्स था, ठीक है, एक जाहिल शख्स था, इतना नालायक शख्स था कि इम्तिहानों में फेल हो जाया करता था। और जनाब मैं हवाले सेंड करता हूँ, दलील देता हूँ, आप बंदे को पुत्र बन के जवाब तो दें उनका। अब मेरे भाई अपने आप को मुसलमान तो साबित करो पहले। तुम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम तो ले रहे हो, लेकिन तुम्हारा कोई तल्लक भी उनके साथ बनता है कि नहीं? अपना फिरका तो पहले बताओ। उन्होंने तो कहा था कि मेरी उम्मत के 73 फिरके होंगे, तुम कहते हो मेरा फिरका ही कोई नहीं है, तो तुम तो मुसलमान ही नहीं हो, तो इसलिए तुम्हारे साथ हमको बात ही नहीं कर सकते। पहले अपना फिरका बताओ, शाबाश, उसके बाद आगे चलेंगे। जी दोस्तों, जिस तरह की आपने मेरी पुरानी ऑडियो में सुना कि मैंने 1000 मरतबा इस बंदे को अपना मुसलमान होना साबित कर दिया, और मुसलमान होने की जो तारीफ है मैंने इसको बयान कर दी, लेकिन चूंकि इसको अब फंस चुका था, अब मिर्जा कादियानी साहब की जो सीरत स्याह है उसको सफेद नहीं कर सकता था, तो इसलिए फजूल किस्म के सवालात और लायानी गुफ्तगू करता रहा। और बीच में ये आप गुलाम सरवर बाबा जी हैं, तो जो मुहाफिजीन है वो तो इनसे उनको जानते हो गए, इन्होंने भी बड़ी टांग अड़ाने की कोशिश की, लेकिन चूंकि मेरा खिताब ये नहीं थे, मैं इनसे मुखातिब नहीं था, इस वजह से मैं इनको इग्नोर करता रहा, इनसे बात नहीं की। मेरी अगली ऑडियो सुनिए। रहमान रहीम। ओ जनाब मोहतरम मेरी फिक्र छोड़े, मेरी और अपनी फिक्र छोड़े,
हम तो फिर भी अभी अल्लाह ताला ने हमें जिंदगी दी हुई है, अल्लाह ताला तो अभी हमसे बड़े नेक काम ले सकता है। और हम मिर्जा कादियानी साहब की सोचें, ठीक है, कि जो कि अपनी किताबों की रोशनी में झूठा साबित हो रहा है। आपकी किताबों के मिर्जा कादियानी साहब के जो अजीम साहबी हैं, उन्होंने मिर्जा कादियानी साहब की सीरत पर जो किताबें लिखी हैं, उन सीरत की रोशनी में ही मिर्जा कादियानी साहब एक गवार शख्स साबित हो रहा है। और मिर्जा कादियानी साहब इतना गवार और जाहिल इंसान था कि वो पेपरों में फेल हो जाया करता था। वो यार कहना नबी मैनू तो दसो जिन्हें दुनिया के पेपर जो फेल हो जाता तो आखिरत की बनेगा। मैनू दसो ना जनाब, हवाला कहते हो तो हवाला मैं सेंड कर देना। जनाब अपने मिर्जा साहब नू बचाओ, मेरी छड्डो। मेरे ते हले अल्लाह ताला ने मैनू वक्त दिता है, जिंदगी दी है, अल्लाह ताला मैनू तौबा नसीब कर सकता अगर मैं गुनाहगार होया तो जनाब मिर्जा साहब कादियानी साहब सुनो। और जनाब हकीम साहब जेडे बड़े नेक शख्स थी। ओ यार पहले अपने आप को मुसलमान तो साबित करो। तुम जो हजरत मिर्जा साहब की मुखालफत कर रहे हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से कर रहे हो ना, तो उस नबी के साथ तो तुम्हारा कोई तल्लक वास्ते नहीं है। मुझे क्या पता हो तुम हिंदू हो, सिख हो, मजूसी हो, ईसाई हो, यहूदी हो, कि ऐसे ही प्रोपेगेंडा कर रहे हो। वो अपना फिरका तो बताओ, साबित करो तुम मुसलमान हो। तुम तो अपने लहजे से, अपनी बातों से लग रहे हो कि तुम पक्के काफिर हो, ठीक है ना, बल्कि हद से गुजरोगे पक्के काफिर हो। तो भाई तुमसे बात नहीं हो सकती, पहले अपना फिरका बताओ। शाबाश। रहमान जनाब, मैं पहले कई बार मैं अर्ज कर चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुसलमान हूँ, मैं अल्लाह ताला को एक मानता हूँ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानता हूँ और तमाम ज़रूरियात दीन उसका इकरार करता हूँ। और जो शख्स भी इन तमाम चीज़ों का इकरार करता है मैं उसको मुसलमान जानता हूँ, काफिर नहीं कहता। मैं कई बार इकरार कर चुका हूँ, पता नहीं अब आप में हिम्मत नहीं पड़ रही कि आप मेरे सवालों के जवाब दे सकें। जनाब मिर्जा कादियानी साहब को मैंने गंवार, अनपढ़, जाहिल और कुंद ज़हन साबित कर दिया है। और मिर्जा कादियानी साहब इतने कुंद ज़हन थे कि मिर्जा कादियानी साहब पेपरों में फेल हो जाया करते थे। ये अगर आप हुक्म करते हैं जनाब, मैं इस पर हवाला सेंड कर देता हूँ। पीर साहब थोड़े ठंडे हो, थोड़े नाल भी गल करने आ। हुण जिहड़े बंदे नाल मैं गल कर रहा उहदे नाल मैं क्लीयर गल करना, थोड़े नाल भी करने, थोड़े सारे सवालों के जवाब दांगा। ये तो सारा कुछ मैं भी मानता हूँ जिसको तुम काफिर कहते हो। मैं भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का आखिरी नबी मानता हूँ, मैं खातमुल अंबिया मानता हूँ, मैं खुदा की तौहीद पे यकीन करता हूँ, मैं ज़कात भी देता हूँ, मैंने हज। जी दोस्तों, जिस तरह के आपने सुन लिया है कि ये इतने शैतान कादियानी हज़रात हैं कि एक जानिब तो ये दावा करते हैं मासूम लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने के लिए, ये अपना दावे को जाहिर करते हैं कि हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं, हम उनको खातमुन नबीयीन मानते हैं। लेकिन इसके बावजूद ये कादियानी हज़रात, कादियानी मुरब्बी मिर्ज़ा कादियानी के लिए नबूवत को साबित करते हैं, उसके लिए नबूवत का लुज़ूम करते हैं और बेचारी उम्मत को गुमराह करने के लिए और उनको अपने गंदी जमात में ऐड करने के लिए, दाखिल करने के लिए, उनको गुमराह करने के लिए अपना ये अकीदा वाज़े करते हैं कि हम भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत को तस्लीम करते हैं, जबकि इस बात का हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आप मेरी अगली ऑडियो सुनिए। जनाब जी अपनी सफाइयां बाद आ जाए, पहले मिर्जा कादियानी साहब की सफाई तो दे लो मैनू। और मिर्जा कादियानी साहब जो लिख गए ने पहले उनकी सफाई दो, बाद तुहाडे कोल पूछ लांगे तुसीं मुसलमान आए हो या नहीं। मिर्जा कादियानी साहब जिहड़े जाहल ते अनपढ़ साबित हो रहे ने, पहले उन्होंने तो संभालो मिर्जा कादियानी साहब को, जिहड़ी अपने ही किताबां की रोशनी दीन इस्लाम तो खारिज साबित होंदे ने, काफिर साबित होंदे ने। पहले मिर्जा कादियानी साहब नूं ते बचा लो, और बाद तुहाडे कोल पूछ लांगे तुसीं मुसलमान हो या नहीं। फिर और जनाब यही बात नहीं सिर्फ ये नहीं कि मिर्जा कादियानी साहब एक जाहिल इंसान थे, गंवार शख्स थे। इसके अलावा मिर्जा कादियानी साहब को नाउज़ुबिल्लाह मातला ज़िना भी करते थे कभी कभी। रोज़नामा अल फज़ल, इसका मेरे पास हवाला मौजूद है, मैं सेंड कर सकता हूँ, जिसमें लिखा है कि मिर्जा कादियानी साहब कभी कभी ज़िना करते थे। इसके अलावा दूसरी बात जनाब, मिर्जा कादियानी ऐसा, मैं अब क्या कहूँ जनाब, वो कभी कभी थिएटर भी जाता था, होए नबी दे थिएटर जाओ, ये कितने लिखा आया, ठीक है। उसके अलावा जनाब मोहतरम मिर्जा कादियानी साहब के खिदमत पर नौजवान लड़कियां जो सी वो खिदमत मामूल रहती थी 24 घंटे मिर्जा कादियानी साहब, और डॉक्टर नहीं देख के आती, और 3-3 महीने आके मिर्जा साहब खोल लेंदी थी। जो मिर्जा डॉक्टर नहीं मार गई तो मिर्जा कादियानी साहब ने चुन्नी अपने नाल अलमारी से बन ली ताकि उन्होंने वेख के उनकी याद आती रहे, दिल से दुआ निकलती रहे। और जनाब सारे हवाले मेरे को मौजूद ने, किसी मिर्जा कादियानी की सीरत तुम मर सकते हो, कादियानी मर सकता है लेकिन कभी भी मिर्जा कादियानी की सीरत का दिफा नहीं कर सकता। मैं चैलेंज करता हूँ आपको कि आप मिर्जा कादियानी की सीरत का दिफा करके दिखाएं मुझे। जी दोस्तों, जिस तरह के आप देख सकते हैं, अब मैंने एतराज़ात किए और तमाम आपने गुफ्तगू सुनी, कोई भी किसी भी एतराज़ का इस कादियानी मुरब्बी अदील ने
इसका रद्द नहीं किया। इस गुफ्तगू के दौरान एक बाबा तो तंग करता ही रहा, ये जिस तरह गुलाम सरवर आप सब जानते होंगे। इसके अलावा एक और बंदा आया और अदील नामी ने सॉरी और कोई इसका नाम है, एक और बंदा आया, तो वो क्या कहता है आप इसकी ऑडियो भी सुन लें। अच्छा जनाब, माशाल्लाह आपने अपने इल्म का और सारा जो है इस ऑडियो में तो आपने बड़ा खुल के बयान कर दिया कि आप इंतहाई जाहिल मुतलिक हैं। आप साबित कर दें वो तहरीर किसी अहमदी की है जिसमें लिखा हुआ है कि जो थे वो मिर्जा साहब जना करते थे। मैं आज जमात अहमदिया छोड़ता हूँ, वरना झूठे पे खुदा की लानत, आप पे लाखों लानते अल्लाह ताला की फिटकार पड़े। आपने ऐसा इल्जाम लगाया हजरत मसीह मौद की जात पे। अब वो आपने साबित करना है कि किसी अहमदी की तहरीर है और लिखा हुआ है कि हजरत मसीह मौद जना किया करते थे। सारी बातें छोड़ें, अब इधर उधर ना भागें, वो तहरीर यहाँ पे लगाएं और साबित करेंगे वो किसी जमात अहमदिया के बंदे की तहरीर है। चलो शाबाश, हिम्मत करें बरेलवी साहब। जी दोस्तों, जिस तरह के इस बंदे ने दावा किया है कि अगर ये आप बात दलाइल के साथ साबित कर दें कि मिर्जा कादियानी साहब जिना करते थे तो मैं कादियानियत को छोड़ दूंगा, लेकिन कबल इस के बाद के कि मैं हवाला को पेश करता, ये कादियानियों ने मुझे इस ग्रुप से रिमूव कर दिया, जिस तरह के आप देख सकते हैं। और रीजन क्या बताते हैं, आप रीजन भी सुन लें। ये कोई आया, इसने पता नहीं हमारी गुफ्तगू सुनी है या नहीं सुनी है, फिर इसको पर्चियां जाना शुरू हो गई और जनाब आया और ये रीजन बता रहा है, आप सुने इसको। आपकी बदजुबानी, बद अखलाकी और बदतमीजी की वजह से आपको रिमूव किया जाता है, ये ना समझिएगा कि शिकस्त तो हो गई है। जी दोस्तों, जिस तरह के आप, ये बंदा हमारी जितनी भी गुफ्तगू तकरीबन आया था, आधा घंटा हमारी गुफ्तगू चली, ये बंदा तब नहीं आया। अब इसको जब पर्चियां गई, इन्होंने तरले मिनते किए कि जनाब इस बंदे को बाहर निकालो, तो आके जनाब मैंने बदजुबानी की, मैंने बद कलामी की, इस वजह से मुझे रिमूव किया जाता है। जबकि जितनी भी बातें हैं, मैंने तो जितनी भी गुफ्तगू हुई, मैंने तमाम की तमाम बातें मैं दावा करता रहा, चैलेंज करता रहा कि जनाब आप मुझसे दलील तलब करें, जो मैं बातें कह रहा हूँ उसको मैं दलील के साथ साबित करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मिर्जा कादियानी मिर्जाई मर सकते हैं, लेकिन कभी भी मिर्जा कादियानी की सीरत पर पैरा नहीं दे सकते, उसको उसकी स्याह सीरत को सफेद नहीं कर सकते। इस वजह से उन्होंने मुझे ग्रुप से रिमूव कर दिया। तो अब क्या मैं, ये इस बंदे ने कहा कि अगर आप दलील के साथ साबित कर दें कि मिर्जा कादियानी जिना करता था कभी कभी, अगर आप इस बात को दलील के साथ साबित कर दें तो मैं कादियानियत छोड़ने के लिए तैयार हूं। तो जी दोस्तों, ये आप जिस तरह के आप देख सकते हैं, रोजनामा अल फजल जो कि कादियान से शाया होता था 31 अगस्त 1938, सफ़ा नंबर 6, इसमें लिखा है कि मिर्जा कादियानी साहब के चाहने वाला एक खत लिखता है, कहता है कि हजरत मसीह मऊद मिर्जा कादियानी वलीउल्लाह थे और वलीउल्लाह कभी कभी जिना कर लिया करते हैं। अगर उन्होंने कभी कभी जिना कर लिया तो इसमें हर्ज क्या हुआ? हमें मसीह मऊद अलैहिस्सलाम पर एतराज नहीं, क्योंकि वो कभी कभी जिना किया करते हैं। हमें एतराज मौजूदा खलीफा पर है, क्योंकि वो हर वक्त जिना करता रहता है। अस्तगफिरुल्लाह, नाउज़ बिल्लाह, माज़अल्लाह। अब ये जो सा रोजनामा अल फजल है, ये मुसलमानों का या और किसी बंदे का रोजनामा नहीं है, बल्कि ये कादियानियों का अपना रोजनामा था जो कि कादियान से शाया होता था। दूसरी बात, मिर्जा कादियानी इतना कुंद ज़हन और जाहिल इंसान था कि वो पेपरों में फेल हो जाया करता था। ये जिस तरह कि आप देख सकते हैं, सीरतुल मादिया सफ़ा नंबर 142 जिल्द नंबर 1, इसमें आप ये देख सकते हैं, हाईलाइट किया हुआ इबारत को मैं पढ़ के सुना देता हूँ कि चूंकि मिर्जा साहब मुलाजमत को पसंद नहीं फरमाते थे, शुरू से ये हड्डाराम थे, यानी काम करने को इनका दिल ही नहीं चाहता था, इसलिए पसंद नहीं फरमाते थे। इस वास्ते आपने मुख्तारी के इम्तिहान की तैयारी शुरू कर दी, यानी मिर्जा साहब ने बड़ी जोरों शोर से तैयारी शुरू कर दी और कानूनी किताबों का मुताला शुरू किया। अब आपसे मैं एक सवाल करता हूँ कि कानून के साथ जो जानवर है उनका क्या ताल्लुक? ये तो मिर्जा साहब को सोचना चाहिए था कि मैं तो जानवरों की लिस्ट में शुमार होता हूँ, मैं कानूनी किताबों को पढ़ लूंगा तो इससे क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल जनाब, अब जानवर अगर जितना भी कानूनी किताबों को पढ़ ले तो वो पास नहीं होगा। इसी वजह से कह रहे हैं कि पर इम्तिहान में कामयाब ना हुए, क्योंकि वो दुनियावी काम के लिए उसको मबूस ही नहीं किया गया था। लो जनाब, अब जब फेल हो गए हैं, उनकी नलायकी का ढंढोरा पिट गया सबके सामने और सबको पता चल गया कि मिर्जा कादियानी साहब इम्तिहान में फेल हो गए, तब इनको याद आया कि मिर्जा कादियानी साहब तो इस काम के लिए पैदा ही नहीं हुए थे। अरे इससे यह साबित होता है कि मिर्जा कादियानी साहब को फजूल कामों में ऐਵੇਂ टांग अड़ाने की बड़ा शौक आता, जिस तरह के जिसकी वजह से फजूल कामों में टांगे अड़ाते रहते थे। इसके अलावा सबसे पहले मैंने कहा कि मिर्जा कादियानी साहब एक गंवार शख्स है, और ये इस बात का हवाला हमें मिर्जा कादियानी साहब की सीरत पर लिखी गई कुतब से ही मिलता है। मैं थोड़ा आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें जनाब,
ذکر حبیب اس کے مصنف ہے حضرت مفتی محمد صادق صاحب. یہ لکھتے ہیں کہ قادیان میں ایک مرزا صاحب ہیں کہ جن کو الہام ہوتے ہیں. ان کی شکل بالکل سادہ گنواروں کی طرح ہے. لے جناب، اب میں نے دلیل کے ساتھ ثابت کر دیا کہ مرزا قادیانی صاحب ایک گنوار شخص تھے. اس کے علاوہ جناب محترم مرزا قادیانی صاحب بہت ہی عاشق مزاج تھے. تو آپ نے جناب آپ نے سسی پنو تو سنا ہوگا، ہیر رانجھا تو سنا ہوگا، لیے جناب اب مرزا ڈاکٹرنی بھی سن لیں. تو جناب محترم یہ مرزا قادیانی صاحب کے کوئی مرید تھے ڈاکٹر نور محمد صاحب لاہوری. ان کی بیوی ڈاکٹرنی کے نام سے مشہور تھی. وہ مدتوں قادیان آ کر رہی اور حضور یعنی مرزا قادیانی کی خدمت کرتی رہتی تھی. تو فوت ہو گئی. تو جب فوت ہو گئی تو مرزا قادیانی صاحب نے اس ڈاکٹرنی کا دوپٹہ منگا لیا اور دوپٹے کو منگوا کر یہ نہیں کہ سنبھال کے رکھ لیا بلکہ کہا کہ اس کو میری سامنے الماری پر اس کو لٹکا دو تاکہ دوپٹے پر میری نظر پڑے اور مجھ کو ڈاکٹرنی کی یاد آتی رہے. لو جناب، یہ کیسا نبی ہے کہ جو عاشق مزاجیہ بھی کرتا ہے. یہ میں نے اس عبارت کو ہائی لائٹ کر دیا ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں. یہ سیرت المہدی جلد نمبر 100 اور صفحہ نمبر 331 ہے، اس میں آپ پڑھ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قادیانیت کو راہ راست پر آنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کو رد قادیانیت پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.